I'm sharing few information. And interestingly, his mobile number is BSNL mobile number, and his mobile number last is 66, right, sir? Okay, 766. किसी तरह से नंबर नहीं लिया. ओके, इसके अलावा इनका कुछ ईमेल आईडीज हैं. आई एम शेयरिंग द ईमेल आईडीज. www.allocroy.in, right, sir? There is email ID, and your another email ID is allocroy@tripurauniv.in, right, sir? So this is not so easy to track it down. I have used several social media platforms to gather his information. And interestingly, I am telling you another thing, that BSL number is linked with his bank account, right, sir? Just ask him. So in that way, I can grab the amount from his bank. And if sir permit, then I will grab the amount. But I will not revert it back. If sir agree. I'm assuring you. Okay. I'm just kidding. So all this information that is very much valuable for himself, that I have gathered from social media engineer. Okay, and he has published very, very, very renowned books also. One book is Blockchain for IoT, like that, sir. Another book is Application of Internet of Things, IoT, right, sir? So these books are also available in Kindle and Amazon and Flipkart, these platforms. So I'm showing this demo for your safety and your precaution purpose. The hackers are grabbing this information from social media engineering or ethical hacking. Okay. So my point is that whatever you are sharing in social media, it is very much dangerous and very much risky. Okay. So in that regard, to ask you few questions. Please give me the answer. Give me the honest answer. Right? Are you ready? Okay. आज इस क्लास में, my first question, आज इस क्लास में आने से पहले किसने किसने फेसबुक एक्सेस नहीं किया? प्लीज रेज योर हैंड. आज. ओके. बाकी सब फेसबुक एक्सेस किया? ओके. बिफोर दैट किसके किसके पास स्मार्टफोन नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. सबके पास स्मार्टफोन है? ओके. किसका किसका फेसबुक में आईडी नहीं है? मैं पूछा पहले. ओके. वन, ओनली वन. ओके. तो मैं ये क्यों, दैट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सोशल इंजीनियरिंग. ओके. आप जो फेसबुक, जिस मैक्सिमम लोग हम फेसबुक यूटिलाइज करते हैं एंड व्हाट्सएप यूज करते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एवरीथिंग. तो इसमें क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग जो डाटा शेयर करते हैं या फेसबुक में जैसे हम कुछ डाटा देते हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज बाय फेसबुक सर्वर. ठीक है. आप ऐसा कभी कभी देखा है क्या कि आप सपोज आपका पास फेसबुक है, बट आपने अमेजोन में जाके कोई शू चेक किया, ठीक है, सेम ऐड आपको फेसबुक में प्लेटफॉर्म में दिखाता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? डाटा लीक हो रहा है. ओके. तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? हाँ बोल, डाटा ब्रीच. ओके फाइन. मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये कैसे होता है. डू यू नो दैट? हु गिव्स दिस परमिशन टू फेसबुक टू एक्सेस माय डाटा? एग्जैक्टली, वी.
we give this permission to access this data. When? At the time of installing of Facebook. Accept, 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 accept. Right? Okay. Why I am asking, I am telling about Facebook? Because most of the people are using Facebook, but they don't know what is the security measures of Facebook. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका किसका फेसबुक प्रोफाइल लॉक है? प्लीज रेज योर हैंड. फाइन, ऑलमोस्ट सभी का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट ऑनेस्ट आंसर. किसका किसका फेसबुक प्रोफाइल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है? ओनली 3, 4, 5. ओके, दैट मीन्स अदर जो है उनका फेसबुक कभी भी कंप्रोमाइज हो सकता है, एनी टाइम. ओके, नेक्स्ट, किसका किसका फेसबुक अकाउंट में एक ऑप्शन है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, जो आपको बाकी दूसरा प्लेटफॉर्म का एक्टिविटी एक्सेस नहीं देता है. आप वो ऑप्शन किसका किसका टर्न ऑफ है? मान लीजिए आपने अमेजोन में कुछ देखा, फ्लिपकार्ट में देखा, नाइका में देखा, फर्स्ट क्राई में देखा, वो आप जो देख रहे हैं सब डाटा फेसबुक ले रहा है. देयर इज ऑप्शन जिससे आप ये बंद कर सकते हैं. व्हाट इज द ऑप्शन? You know that, and that is very much important. That is called off Facebook activity. अगर आपने ये बंद नहीं किया, your everyday activity will be monitored by Facebook. Even your bank account activity, even each and every app activity that is remaining in your handset, every activity is monitored by Facebook. Okay, क्या आप ये बंद करना चाहेंगे? ओके, मैं लास्ट में दिखा दूंगा आप लोगों को. अभी मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं साइबर क्राइम का कुछ ट्रेंड्स आप लोगों को बताने वाला हूं. एंड इस ट्रेंड में क्या चल रहा है आप लोगों को जानना जरूरी है. और इसमें फ्रॉड होने के बाद आप कहाँ कंप्लेन लॉन्च करेंगे, पुलिस के पास कहाँ जाएंगे, कहाँ लॉन्च करने से आपका पैसा रिवर्ट हो सकता है, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग विद यू. राइट? ओके, दिस इज द 1 मिनट डाटा ऑफ, आप देख सकते हैं, ऑफ सोशल मीडिया इंजीनियरिंग. आप देख सकते हैं हर मिनट में कितने सारे डाटा कौन सा प्लेटफॉर्म में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. ओके, तो इट इज वेरी डेंजरस. मीन्स हम लोग दिखने में तो बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट सिटी में रहते हैं, बट वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली सो स्मार्ट. ओके, अगर हम टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट होते तो इतना सारा डाटा शेयर नहीं होता. एंड आई कैन प्रूव दैट वी आर नॉट सो मच टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट. ओके, तो इसमें बेसिकली एटीएम फ्रॉड, ये बहुत पुराना फ्रॉड है, ये त्रिपुरा में भी हुआ है एटीएम फ्रॉड. इसमें क्या हुआ, इसमें कैसे फ्रॉड होता है आप लोग ये जान लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एटीएम्स. इसमें देखिए ये डिफरेंट स्कीमर्स हैं. ये जो स्कीमर्स हैं वो लोग ये स्कीमिंग डिवाइस एटीएम का इस स्लॉट में लगाते हैं, ओरिजिनल स्लॉट के ऊपर इंपोज करते हैं. ठीक है, आफ्टर इंपोजिंग इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चिप लगा हुआ है, यहाँ पर एक चिप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं. इसमें मैं माउस से दिखाता हूँ, यहाँ पर एक चिप लगा हुआ है, यहाँ पर ये चिप और यहाँ पर बैकअप देने वाला छोटा बैटरी भी है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले इस ओरिजिनल के ऊपर जो हम कार्ड जहाँ इंसर्ट करते हैं इसके ऊपर ये वाला सेम डुप्लीकेट वन इसके ऊपर इंपोज करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, कीपैड के ऊपर दूसरा एक स्टिकी कीपैड लगाता है और इसके बाद छोटा एक पिन होल कैमरा यहाँ पर अटैच कर देता है टू मॉनिटर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले स्कीमा लगाया और इसके बाद गमी कीबोर्ड लगाया. गूगल मीट ओके सर, हाँ.
इज इट विजिबल सर? ओके डन। ओके, अब इसमें बेसिकली वो क्या करता है, पहले स्टीमर लगाता है, स्टीमर इरेज करके इसके बाद वो कीपैड लगाता है और इसके बाद पिन होल कैमरा लगाता है। अभी न्यू ट्रेंड में ऐसा नहीं है, न्यू ट्रेंड में और भी एडवांस हो गया। अभी और की स्ट्रोक भी वो इमीडिएटली ट्रैक डाउन कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली दिस काइंड ऑफ फ्रॉड इज कॉल्ड फार्मिंग। आप इसका लिंक में क्लिक करने से, ये आपका लॉटरी का मैसेज का लिंक है, ये कभी कभी वीकली देके भी आता है। तो उस लिंक में क्लिक करने से वो आपको दूसरे यहाँ पर भी वीकली देके लिंक यहाँ क्लिक करने से इट विल रीडायरेक्ट टू ए फेक वेबसाइट, और जिसमें आपका कार्ड क्रेडेंशियल मांगेगा और आपने कार्ड क्रेडेंशियल शेयर किया और इमीडिएटली दिस इज गूगल मैप और गूगल सर्च इंजन रिलेटेड फ्रॉड। हम लोग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी प्लेटफॉर्म से कुछ भी सामान मंगा लिया, इसके बाद हम लोग जब क्या मंगाने के बाद मान लीजिए क्या है, ठीक है, ये तब क्या करते हैं, हम लोग उसको रिटर्न करना चाहते हैं, राइट। तो इन दैट केस हम लोग जब जाते हैं गूगल में सर्च करते हैं नंबर, ठीक है ना, अमेजोन कस्टमर नंबर और फ्लिपकार्ट कस्टमर नंबर, राइट हुआ। जो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेम टैगलाइन बनाते हैं, अमेजोन कस्टमर या नंबर बोल के उनका नंबर दे देते हैं। नंबर देके अभी उसका रैंक कैसे बनाता है भाई, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ बोलते हैं, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, उसमें वो लोग गूगल प्लेटफॉर्म को पैसा देते हैं, देके बोलते हैं मेरा टॉप रैंक में ले जाओ, वो टॉप रैंक में ही उसको दिखाता है, क्योंकि दे पेड सम सर्टेन अमाउंट टू गूगल फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी सोशल इंजन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पहले रैंक में दिखाएगा और आप उसमें ही कॉल करोगे, तब उसमें फोन करके अगर अमेजोन बोलोगे कि अमेजोन के कस्टमर है, वो बोलेगा हाँ, आप बोलोगे तो एसबीआई के कस्टमर है, तभी वो हाँ बोलेगा, क्योंकि वो उनको पता ही है कि वो बैठा ही है फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। और आप इमीडिएटली उसको जब कम्युनिकेट करोगे तो वो बोलेगा हाँ सर आपको क्या चाहिए, पैसा रिफंड चाहिए या प्रोडक्ट रिफंड चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे पैसा रिफंड चाहिए। जब आप पैसा रिफंड चाहेंगे तब वो बोलेगा कि मैं ठीक है सर, आपका पैसा विद इन 5 मिनट्स आपका रिफंड हो जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड योर वेरिफिकेशन कोड, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आएगा। आपका मोबाइल नंबर बताइए, तो वो मोबाइल नंबर बताता है कस्टमर, तो उसका मोबाइल में वेरिफिकेशन कोड कुछ नहीं आता, दैट इज कॉल्ड ओटीपी। तो वो इमीडिएटली शेयर करने से आपका पैसा अकाउंट से गायब। ओके, इसके बाद दिस इज ए जेन्युइन केस ऑफ बेंगलुरु, जहां पर क्या हुआ, पॉस मशीन लेके लोग घूमते हैं और जिसको वो रास्ते में लेट नाइट जिसको मिलता है उसको ही स्वाइप करा के उससे पैसा ले लेते हैं। ओके, तो लेट नाइट घूमने पे भी प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज रिलेटेड टू फेसबुक। आप लोग ने सुना है कि फेसबुक के कारण किसी के घर में चोरी हुआ, सुना है? आई वांट द आंसर्स प्लीज। नहीं सुना? ओके, फेसबुक के कारण पुलिस ऑफिसर के घर में चोरी हो गया, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उस पुलिस ऑफिसर ने उस चोर को पकड़ा था और अच्छा से उसका क्लास लिया, राइट। और इसके बाद क्या किया, चोर ने उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ मॉनिटर किया। तो एक दिन वो पुलिस ऑफिसर पोस्ट दिया कि ट्रिप इन बांग्लादेश, बस स्कोप मिल गया, उस दिन उसका घर पूरा खाली वैकेंट। वो आके देखा कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, सोशल मीडिया के कारण आपने ऐसा सुना बच्चा मिसिंग हो गया? नहीं सुना, ऐसा भी इंसिडेंट है। इन फ्यू केसेस देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे लोगों का फर्स्ट डे इन स्कूल बोल के पिक्चर स्क्रीनशॉट में डालते हैं,
जो चाइल्ड लिफ्टर हैं, जो बच्चे को लिफ्ट करना चाहते हैं, वो लोग फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स का प्रोफाइल को मॉनिटर करते हैं। जिनके पास देखने में थोड़ा अच्छा अच्छा बच्चे हैं, उनका मॉनिटर प्रोफाइल को मॉनिटर करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग 1 साल मॉनिटर करेंगे, एक ही दिन अटेम्प्ट करेगा और उस दिन उस बच्चा गायब हो जाएगा। और ऐसा भी है, एक बच्चा गायब हुआ, अभी तक नहीं मिला। ये त्रिपुरा का नहीं, दिल्ली में है केस, अभी तक बच्चा नहीं मिला, जस्ट फ्यू डेज बैक ऐसा हुआ है। ठीक है, तो फेसबुक भी किसी का रोने का कारण बन सकता है। ओके, ऐसा बाग से कभी कभी आप लोगों को, या अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, डिफरेंट आईडी से आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आता होगा, राइट? और आप लोग, बहुत सारे लोग, प्रोफाइल पिक्चर अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लेते होंगे, नहीं करते हो तो ठीक है, और अगर करते हैं तो ऐसा वाला, इसके बाद ऐसा वाला चैट शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए, और आप लोग कभी कभी ऐसे दे भी देते हैं। हाँ, ओके ओके। तो इसमें क्या होता है, पहले वो लोग आपका फायदा उठाते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने सर को बोला है कि सर आपका आईडी ये है, वो है, सर का फेसबुक प्रोफाइल या सर का व्हाट्सएप में सर का पिक्चर भी है, तो उस पिक्चर को लेके या सर का फेसबुक प्रोफाइल का सेम पिक्चर को लेके अगर मैं कोई फेक प्रोफाइल बनाता हूँ और कल आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट डालता हूँ, तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, 100% करेंगे, राइट? बट आप लोग अगर करते हैं, इसके बाद थोड़े दिन बाद ही उस प्रोफाइल से मैं आप लोगों को डालूंगा। मैं पहले सर का प्रोफाइल मॉनिटर करूंगा, सर कब स्टेशन में नहीं है। जब सर स्टेशन में नहीं है उस टाइम ही मैं आपको पोस्ट डालूंगा कि आई एम इन ट्रैवल, मुझे इतना पैसा दे दो, प्लीज हेल्प मी आउट। सर अभी मान कोई ना कोई तो सर के ऊपर दया करके या सर का रिलेशन की से बेसिस पे कुछ ना कुछ तो डालेगा, तो वही वो लोग लेके जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई बंदा प्रोफेसर सो एंड सो बोल के पोस्ट फेसबुक प्रोफाइल में लिखता है, मोबाइल नंबर देता है, राइट? तो इट इज ऑल्सो रिस्की, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है पहले उनका प्रोफाइल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा, तो आप लोग सुना है कभी फेसबुक प्रोफाइल हैकिंग होने के लिए? सुना है? फेसबुक प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेरा प्रोफाइल हैकिंग हो गया। तो अभी मुझे आप लोग ही मुझे बताइए कैसे होता है हैकिंग, कैसे होता है? पता है आप लोगों को? इसके पीछे भी हम लोग ही लायबल है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का कुछ हेल्प चाहिए। मुझे ये बताइए, आप लोग में कौन सबसे ज्यादा सिम टिल डेट, आज का डे तक यूज किया? जब से त्रिपुरा में मोबाइल फोन आया तब से लेकर आज का डेट तक ऐसा कौन है जो मल्टीपल सिम यूज किया? मान लीजिए मैंने अभी तक एक ही सिम यूज किया, ऐसा कोई है जो 2 सिम, 4 सिम, 5 सिम ऐसा कुछ यूज किया? नहीं किया, इम्पॉसिबल। सबका एक ही सिम है, सबका। मैडम के पास 2 है। मैं क्या बोला, सबसे पहले त्रिपुरा में BSNL आया, इसके बाद आया रिलायंस, राइट? इसके बाद आया एयरसेल, इसके बाद आया वोडाफोन। मल्टीपल कंपनी का सिम यूज किया, फेंक दिया, यूज किया, फेंक दिया। ऐसा किसका सबसे लंबा नंबर है? पहले था कितना सर? प्लीज बोलिए, आपका कितना था पहले टोटल? अभी तक कितना सिम यूज किया? 3, 5, 5, मोर देन 5? ओके, आप मुझे 5 सिम का नंबर बताइए। यस, आई नो। आपने कभी चेक किया वो नंबर बंद हो गया या चल रहा है? चल रहा है, एग्जैक्टली। अभी फ्रॉड कैसे होता है? मान लीजिए इनका पहले का सिम है एयरटेल, उसमें उन्होंने फेसबुक डाउनलोड किया, राइट? क्लियर? उनका फेसबुक चल रहा था, इसके बीच में वो फेसबुक पासवर्ड भी भूल गया, कौन सा मोबाइल नंबर पे है। बहुत सारे हैं यहाँ पर जो फेसबुक आईडी उनका याद नहीं है, पासवर्ड भी याद नहीं है।
अभी सेम चीज, ये जो सिम इन्होंने पहले फेसबुक खोला, मान लीजिए 90 डेज बाद इसका क्या होगा, सिम अगर यूज नहीं किया तो इट विल बी रीएलोकेटेड टू समवन एल्स, राइट। तो मान लीजिए वही सिम मणिपुर में एक्टिव हुआ, तो उस बंदे का भी तो ख्वाहिश है कि वो फेसबुक यूज करे, राइट। तो वो अगर उसमें फेसबुक डाउनलोड करेगा तो उसमें किसका प्रोफाइल दिखाएगा, इनका प्रोफाइल दिखाएगा अनडाउटेडली। अगर इनका प्रोफाइल दिखाता है तब उसमें वो बंदा लॉगिन हो पाएगा, हो पाएगा कैसे, उसके पास तो पासवर्ड नहीं है। यस, देयर इज ऑप्शन ऑफ फॉरगेट पासवर्ड, राइट। तो जब वो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेगा तो ओटीपी कहां पर आएगा, उनका मोबाइल में आएगा, बस हो गया। अभी इनका प्रोफाइल यहां से बंद होगा, मणिपुर में एक्टिव हो जाएगा और वो पासवर्ड भी चेंज कर लेगा और वो ये जाएगा कहां, थाने में, सर मेरा प्रोफाइल हैक हो गया। तो हु इज लायबल फॉर दैट, हु इज लायबल फॉर दैट, आप बोलिए। ओके, तो आप लोग एक साइड देख लीजिए, आप लोगों को जानना है कि आपके नाम पे दूसरा कोई सिम चल रहा है या नहीं, आपका आधार कार्ड वोटर आई कार्ड यूज करके कोई दूसरा सिम दूसरी एरिया में चल रहा है या नहीं। डू यू वांट टू नो दैट? रेडी? आवाज तो नहीं है, इसका मतलब इच्छा नहीं है। ओके, फॉर दैट यू हैव टू गो दिस इज ए वेबसाइट CEIR, ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, आप लोगों के लिए बनाया है। ओके, यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट और इसमें आप आपका मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। कितने सारे मोबाइल, सॉरी CEIR, सॉरी ये नहीं, सॉरी मैं दूसरा बोल दिया, एक्चुअली दैट इज टेफकॉप, TAFCOP, टेफकॉप, राइट। टेफकॉप सेम प्रोफाइल ही है, दूसरा पार्ट है टेफकॉप। यू हैव टू गो टू दिस पोर्टल और यू हैव टू वेरीफाई योर ओरिजिनल नंबर। मान लीजिए जो नंबर आपको पता है कि आपका नाम पे इशू है भाई, मीन्स बाय यूजिंग योर आधार कार्ड एंड वोटर आई कार्ड यूज करके आपने जो सिम लिया है, आपको तो वो पता है ना, या अभी तक आप दूसरे का सिम ही यूज कर रहे हैं। जो सिम आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी देके लिया हुआ है, बायोमेट्रिक देके, उस नंबर को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ डालना होगा। इसके बाद सर्च करने के बाद ओटीपी आपको पास आएगा। ओटीपी देने से आपका जितना भी मोबाइल नंबर अभी आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है, सब नंबर यहाँ पर दिखा देगा। क्लियर? और उस नंबर को आप यहां से ही रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो यू हैव टू ट्राई दिस एट होम। क्लियर? अगर डाउट होगा तो मुझे बात कीजिए। दूसरा चीज, आप यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, कितने कितने लोगों का मोबाइल फोन गुम हुआ, प्लीज रेज योर हैंड। और आपने क्या किया? पुलिस को डांटा, राइट? पुलिस काम नहीं किया ना, इसलिए डांटा होगा। दिस इज ऑनेस्ट आंसर ना। मैं पहले ही बोला कि पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को ऐसा समझ में ऐसा सोच में आया होगा, राइट? बट आपने क्या किया? मोबाइल तो आपका है ना, आपने क्या किया? देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट योर फोन बैक, मोबाइल फोन बैक। बोलिए क्या क्या ऑप्शन है? कैसे आप अपना खुद का मोबाइल फोन खुद निकाल सकते हैं? प्लीज, यू आर मच मोर टेक्नोसेवी देन मी। कैसे? Find my deeds, that is absolute. Once upon a time there was a king like IMEI, madam. Okay, how? What is the process? Do you know that? Okay, मान लीजिए आपका मोबाइल आज चोरी हो गया, ठीक है? फिलहाल होगा नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए चोरी हो गया। ओके, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फाइंड माई डिवाइस, दैट इज आपको प्री सेटिंग करके रखना पड़ेगा, राइट? बट इसमें ऑप्शन क्या है? आपको नेटवर्क से वो कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो दिखाएगा, राइट? बट मैं ऐसा ऑप्शन दे रहा हूं आपको
जिसमें आपका मोबाइल, अगर उस बंदे ने कोई भी सिम डाला, कुछ भी डाला, देन यू विल गेट योर मोबाइल फोन बैक। कौन सा नंबर यूज हो रहा है, मान लीजिए फाइंड माई डिवाइस में आपको मिल गया, लोकेशन है आपका यूनिवर्सिटी का कैंटीन, तो आप वहां जाके क्या हर बंदे का पॉकेट चेक करेंगे क्या? इज इट पॉसिबल? आप घर नहीं जा पाएंगे, इतने सारे घूसे मिलेंगे आपको। ओके, इसके लिए देखिए एकदम बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट क्या है। पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा, उसके अंदर मैं क्या डाला, जिसके डालने के बाद ही वो एक्टिव होगा, क्या डाला मैं? सिम नहीं, सिम छोड़ दीजिए, ईमेल आईडी। एग्जैक्टली, ईमेल आईडी इज बेसिक रिक्वायरमेंट। आप ईमेल आईडी डाला, राइट, ईमेल आईडी डाला, डालने के बाद मान लीजिए आप इसमें सिम डाला वगैरह वगैरह, आप काम किया, और मान लीजिए एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आपका मोबाइल गुम हो गया, राइट। अभी जो मोबाइल गुम हुआ उसमें लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, पैटर्न लॉक है, राइट। अभी वो बंदा इमीडिएटली तो उसको यूज एक्सेस नहीं कर सकता, कर सकता है? नहीं कर सकता। फॉर दैट उसको वो पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए, 1000 रुपीज या मिनिमम 1000 रुपीज चाहिए, ठीक है। अभी वो बंदा मान लीजिए कि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मोबाइल रख देगा ऐसे, थोड़े दिन बाद उसमें सिम डालेगा, राइट। सिम तो डालेगा ना, सिम डालेगा लेकिन एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट मान लीजिए वो मोबाइल तो लॉक है, उसने सिम डाला, ठीक है। सिम डालने के बाद ये मोबाइल किसी को बेच दिया, उसके बाद उसने सिम डाला, डालने के बाद उसमें ईमेल आईडी किसका है? आप लोग जिसने, जैसे मैंने खरीदा तो मेरा ईमेल आईडी होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल लॉस्ट होने के बाद आप आपका जीमेल अकाउंट में कंप्यूटर से लॉगिन होना है। क्लियर, समझ में आया? लॉगिन होना है, लॉगिन होके राइट साइड में जो आपका इमेज, प्रोफाइल इमेज दिखाता है ना, उसमें क्लिक करना है। जैसे कि मैं लाइव दिखाता हूं यहां पर, सॉरी, यहां पर क्लिक करना है, राइट। ये जो डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं, यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहां पर जाना है अकाउंट। क्लियर, दिख रहा है सबको? अकाउंट में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो में जाने के बाद, ठीक है, देखिए यहां पर मेरा कितना मोबाइल नंबर दिखा रहा है? एक। आप लोग के पास मोबाइल है ना, आप लोग देख लीजिए, अगर मल्टीपल सिम है और कोई भी सिम मेरा उस डिवाइस में लॉगिन होता है तो इसमें उसका सब नंबर दिखाई देगा। तो चोर ने जो सिम डाला उसका नंबर भी इधर दिखाई देगा। मैं सिंस बिगिनिंग आई एम यूजिंग वन सिम, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग वन सिम, ठीक है। तो चोर उसमें सिम कार्ड अगर डालता है तो यहां पर आपका रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर आपका डिटेल्स में उसका पूरा सिम कार्ड का नंबर शो होगा, ठीक है। अब सिम कार्ड का नंबर मिल गया मीन्स आपको तो चोर मिल गया, ठीक है ना। और इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फॉर दैट MHA ने ये एक साइट बनाया है CEIR। इसमें आप आपका मोबाइल, स्टोलन मोबाइल का डिटेल्स डाल सकते हैं अलोंग विद GD एंट्री कॉपी जो आपके पास है। डालने से वो डायरेक्टली IMEI ब्लॉक कर देता है, बट यू हैव टू प्रोवाइड द कैश मेमो एंड GD एंट्री कॉपी, ठीक है। और अगर आप उसमें कंटिन्यूअसली ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका कंप्लेंट का क्या हुआ। बहुत सारे लोगों का त्रिपुरा में भी मोबाइल रिकवरी हुआ, ठीक है। वो बता देगा कि ESPS में आपका मोबाइल रिकवरी हुआ है, आप जाके कम्युनिकेट करके मोबाइल ले लीजिए। इट इज ए वेरी गुड साइट, ओके। WhatsApp, relating to WhatsApp, WhatsApp में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर से
हर कोई मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सब में बहुत अच्छे मोबाइल पिक। ओके ओके, मोबाइल लॉस्ट हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है। मोबाइल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स फेसबुक में या व्हाट्सएप में? मैं बोल रहा हूं वो बंदा सिर्फ सिम इंसर्ट किया, ओनली सिम, नथिंग मोर देन दैट। सिम इंसर्ट किया, वो टावर के साथ कनेक्ट हुआ और उसका फुटप्रिंट आपका जीमेल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके ओ अच्छा, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो तो नहीं होगा। नहीं, आपका मोबाइल तो नहीं है आपके पास, या मोबाइल चाहिए या सिम चाहिए। ओके ओके, व्हाट्सएप में मल्टीपल अननोन नंबर से बहुत सारे चैट्स आते हैं। आने के बाद हम ऐसे पूछता है हाउ आर यू वगैरह वगैरह, तब हम लोग पिक्चर अच्छा है इसलिए रिप्लाई भी कर देते हैं कभी कभी। तो रिप्लाई करने के बाद इमीडिएटली क्या होता है, ऐसा वाला वीडियो कॉल होता है। ठीक है, ऐसा वाला वीडियो कॉल होता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऐसे दिखाता है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने के बाद उसके साथ जो बंदा उसको देख रहा है उसका कोलाज बन जाता है। दिस इज न्यू ट्रेंड और ये शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत हायर लेवल लोगों के साथ ये हुआ है। ठीक है, तो ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो बंदा उसको मींस वो कॉल एक्सेप्ट किया उसका फोटो के साथ वो कंटेंट कोलाज हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शुरू हो जाता है एक्सटॉर्शन। आप मुझे ये वीडियो में अभी सोशल मीडिया में वायरल करने वाला हूं, आप मुझे इतना पैसा दीजिए अदरवाइज मैं ये सोशल मीडिया में वायरल करने वाला हूं। आपको पता है कि ये टाइप का फ्रॉड है, आज नहीं लगभग 1.5 साल से ये फ्रॉड चल रहा है और कितना पैसा गवाया है लोगों ने। आपको मीन्स आपको इमेजिनेशन है, एक डॉक्टर है जो 12.5 लाख गवाया है, एक स्टूडेंट है एंड he has attempt suicide. तो इट इज वेरी डेंजरस। तो कभी भी अननोन कॉल या अननोन चैट आप रिसीव मत कीजिए। दिस इज अनदर सर प्लीज प्लीज सर। ये जो हमने गूगल जीमेल प्रोफाइल से हमने देखा है कि हमारा हमने काफी सिम्स यूज किए। राइट सर, ऑल आ गया है उसमें, बट उनमें से हमें 2-3 सिम हम यूज नहीं कर रहे हैं। राइट सर, So that SIM is illegally कोई utilize कर रहा है या कंपनी से कुछ कर रहा है उसको? Sir. Because sometimes it happens. yes sir, 100% sir. मैंने छोड़ दिया बट कंपनी सम करके किसी जगह पे मिलता है राजस्थान या Exactly sir, how to exactly. block this? Okay sir, so this is the platform TAFCOP. From there you can directly block it. Otherwise you have to just give a written application to the service provider. The office available in means Tripura. You directly write the application to the service provider that this and that SIM I'm not using since a long time means but otherwise I have lost this SIM. Please disconnect the SIM with my other credentials. तो वो immediately आपका पार्ट से वो डिस्कनेक्ट कर देगा सर। जीमेल अकाउंट से जीमेल प्रोफाइल में और नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड जूइस जैकिंग। आपने सुना है जूइस जैकिंग के बारे में? जैसे हम लोग हमारा एक ट्रेंड है कि हम विदाउट ऑक्सीजन या खाना तो हम रह सकते हैं बट विदाउट मोबाइल चार्ज दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा ही है ना। आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले चार्जर लगाते हैं। तो मान लीजिए इस बोर्ड में मैं चार्जर लगा दिया, लेकिन इस दीवार के पीछे दूसरा भी बंदा हो सकता है। अभी चार्जिंग पॉइंट 3 पिन पॉइंट नहीं रहता, यूएसबी पॉइंट रहता है और उस यूएसबी पॉइंट में आप डायरेक्टली चार्जर लगाएंगे तो उसका बैक साइड में आपका मोबाइल से डाटा सिंक्रोनाइज करके बंदा दूसरा कोई ले जा सकता है। दैट इज कॉल्ड जूइस जैकिंग। ओके, OLX फ्रॉड किसी के साथ हुआ है? OLX फ्रॉड, मैं सो एंड सो मिलिट्री का बंदा हूं, आर्मी का बंदा हूं, वो होता है। ओके, yes yes, so that's why this is very important to aware you people, right? तो OLX फ्रॉड में क्या करेगा, वो आधार कार्ड दिखाएगा आपका, उसका आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, बट एवरीथिंग इज फेक। इफ यू वांट यू कैन जनरेट इट। तो इसमें क्या होगा, इसमें
वो बंदा आपको ऐसा ऐसा बोलेगा भाई मैं आपको 1 रुपया पैसा पहले ही भेज दूंगा, कोई मेरा कोई वो नहीं है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले पैसा दूंगा, प्लीज शेयर योर QR कोड सो दैट आई कैन सेंड 1 रुपी एट फर्स्ट। 1 रुपया भेजता है, भेज के बोलते हैं सर अभी तो पैसा नहीं जा रहा है। 1 रुपया तो आया आपके पास, आपको मिला ना 1 रुपया, हाँ मिल गया, अभी तो नहीं आ रहा है सर। आप एक काम कीजिए, आप मेरा QR कोड ले लीजिए और फिर ट्राई करते हैं। तो फिर जो QR कोड में आप बोलता है आप कितना पैसा चाहिए, इतना, आप इतना अमाउंट लिख दीजिए, टाइप कीजिए, वो टाइप करता है, क्योंकि उसने तो एक वो उस बंदे का QR कोड स्कैन किया है ना, तो इसके बाद वो पे नहीं होता, वो क्या होता है उसका अकाउंट से डेबिट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? वो किस लिए होता है? जब हम किसी QR कोड को स्कैन करते हैं तो उसको क्यों करते हैं? यस, दिस इज वन वे चैनल फॉर पेइंग द अमाउंट, ऑलवेज वी स्कैन QR कोड। मान लीजिए आपने किसी का QR कोड स्कैन किया, तो उस बंदे को आप पे कर रहे हैं, आप पे ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास पैसा आएगा। तो दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। सिम स्वैप में क्या होता है? सिम स्वैप में आपका जो सिम नंबर है, अचानक देखेंगे आप उसमें टावर चला जाता है। आप तो सोचेंगे कि भाई नेटवर्क इशू है शायद इसलिए टावर चला गया, बट नॉट लाइक दैट। सर्विस प्रोवाइडर का कुछ बंदे उसके साथ लिंक्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी जो वेंडर हैं उनको डुप्लीकेट सिम इश्यू करके दे देते हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपका सिम का टावर चला गया तो उस सिम में एक्टिवेट हो गया, वो सिम एक्टिवेट हो गया, तो वो उस सिम में आपका बैंक का क्रेडेंशियल वगैरह सब है, तो OTP तो उस सिम में आएगा। तो दिस वे दे कैन कमिट साइबर क्राइम बाय सिम स्वैपिंग। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग केस ऑफ त्रिपुरा स्टेट। अचानक एक बंदे के, ये देखिए आपके जैसा, वो लोग स्मार्टफोन नहीं यूज किया, उस बंदे ने जस्ट नॉर्मल कीपैड फोन उनके पास था। क्या हुआ इस केस में देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। एक मैसेज आया, योर ATM so and so is debited with 17,252, थैंक यू, ठीक है, आया। इसके बाद इसी नंबर से उस बंदे को फोन आया, सर अपने, मैं SBI से बोल रहा हूँ कि आपने पैसा विड्रॉ किया, आपका 17,252 डेबिट दिखा रहा है सर, आपने किया ट्रांजेक्शन? तो वो बंदा रिटायर्ड पर्सन है, वो बोल रहे नहीं मैं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो सर मैं क्या इस ट्रांजेक्शन को बंद कर दूं? हाँ प्लीज बंद कर दीजिए। तो बंद करने के लिए सर आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, कोड दे दीजिए। तो इसके बाद वो कोड आया, आप देख सकते हैं, देखिए SMS कोड के लिए रिक्वेस्ट आया, ये देखिए SMS कोड भी आया, ठीक है। तो देखिए ये कोड आया, अभी कितना डेबिट हुआ, 19,400। इसके बाद फिर कितना डेबिट हुआ, 10,000, फिर डेबिट हुआ 10,000, फिर 5,000, ओके। इसके बाद वो बंदा बोला कि भाई क्या हुआ है, तुमने बोला पैसा रिफंड होगा, अभी तो पूरा पैसा डिडक्ट हो रहा है। नहीं सर ये प्रोसेसिंग चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रोसेसिंग चल रहा है, आपका पैसा डेबिट हो जाएगा। और इसके बाद फिर उन्होंने एक मैसेज डाल दिया, योर UBI ATM नंबर so and so is refunded with 17,252, but this is normal text message, nothing more than that। जो पहले वाला मैसेज आया that is also text message, जो आप भी किसी को सेंड कर सकते हैं। और सिर्फ बीच का जो मैसेज है आप देख सकते हैं, ये मैसेज हेडर देख सकते हैं, ये नॉर्मल नंबर से है, और ये जो मैसेज है दैट इज जेन्युइन मैसेजेस, मींस OTP जिससे आया। देखिए ये जो मैसेज है दैट इज आल्सो फेक एंड दिस इज द जेन्युइन OTP रिक्वेस्ट, देखिए। और लास्ट में सेटिस्फेक्शन के लिए उसको फिर टेक्स्ट मैसेज डाल दिया। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट मैसेज भी किसी को लूटा जा सकता है। किसका ऐसा कौन बने का करोड़पति का लॉटरी लगा है, किसी को लगा है? आपको क्या नाम है आपका? मिला? क्या मिला था? सफारी, टाटा सफारी? कुछ नहीं मिला, पैसा गया कुछ, ओके। तो ऐसा भी आएगा, बाई पोस्ट आता है घर में,
तो दिस इज अनदर ट्रेंड ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर आपने लॉटरी काटा ही नहीं है, 51 करोड़पति में अप्लाई ही नहीं किया, तो क्यों वो ऐसा होगा? आपको लॉटरी कैसे लगेगा? ओके, तो मेरा जो लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद मैं फॉरेंसिक टूल का कुछ डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे हम लोग सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, और आपका सेफ्टी के लिए कैसे काम में आएगा। अच्छा, ये स्लाइड मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे, इंटरनेट में हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि जियो सिम आया तब हम सब सोचे कि जियो फ्री 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 है, सब जियो जियो जियो, सब जियो सिम ले लिया, बाकी सब सिम कंपनी सो गया, राइट? जियो जुग जुग जियो टाइप हो गया। अभी अभी वो इतना पैसा मीन्स अभी वो बोलेगा 1000 रुपया महीने क्या है, तो भी हम लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट हम लोग सोचते हैं इंटरनेट फ्री है, हम इसलिए इंटरनेट की यूज कर रहे हैं। मैटर ये नहीं है, एक्चुअली इंटरनेट हमसे, हम फ्री, हमारे पास बहुत फ्री टाइम है, इसलिए इंटरनेट हमसे सब कुछ ले रहा है। ठीक है, तो इतना मैं जितना आप लोगों को शेयर किया, इसमें कोई किसी का डाउट, किसी का डाउट? डाउट नहीं है? ओके फाइन, प्लीज 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 सर, हमारे साथ कुछ समय আছে। ओके, अगर मैं कंटिन्यू, सर आप प्लीज अगर बोर हो रहे हैं प्लीज बोलेंगे सर, प्लीज कोई भी चीज समझ दिया। ठीक है, बोलिए प्लीज। ओके राइट, प्लीज से रिलेटिंग टू एटीएम, कौन कौन शॉपिंग मॉल में जाता है? प्लीज रेज योर हैंड। कौन नहीं जाता है? कौन कौन जाता है? प्लीज रेज योर हैंड। सब? ओके फाइन। ओके, अभी मान लीजिए मैं रिलायंस डिजिटल में गया और वो कुछ शॉपिंग कर लिया, ठीक है, इसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली कैश काउंटर। उसके बाद वो क्या पूछेगा? क्या फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछेगा? रॉन्ग, मोबाइल नंबर, फर्स्ट मोबाइल नंबर। और हम लोग, हमारे पास 10 सिम है, अभी 10 सिम होगा तब भी हम कौन सा वाला नंबर शेयर करते हैं? प्लीज टेल मी। जो सबसे पुराना नंबर है एंड जो हमें याद है। मींस मान लीजिए आपके पास 2 सिम है, एक जियो, बहुत सारे बंदा ऐसे भी है जिसको जियो का नंबर ही पता नहीं हुआ, अभी इस क्लास में भी है, मुझे पता है, जिसका जियो सिम यूज तो कर रहे हैं लेकिन नंबर पता नहीं है, राइट? ओके, तो मान लीजिए मेरा नंबर है बीएसएनएल, तो मेरा माइंडसेट यही है कि यही नंबर में मैं दूंगा, राइट? अभी फ्रॉड कैसे हो रहा है? मैं नंबर दे दिया उसको, इसके बाद वो क्या पूछेगा? नाम नहीं पूछता, मान लीजिए कभी कभी पूछता है, इसके बाद एग्जैक्टली कार्ड और कैश सर। तो हम लोग तो स्मार्ट हैं, राइट? स्मार्ट है, ठीक है ना? तब हम बोलेंगे कार्ड कार्ड कार्ड। ओके प्लीज, तो कार्ड हम दे देते हैं किसके हाथ में? उसके हाथ में, राइट? और ऐसा ही एक डेस्क रहता है जिसके यहाँ पर आप खड़े रहते हैं एज ए बायर, और यहाँ पर वो बैठ के उसको कम्युनिकेट करता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा एक पॉस मशीन रहता है, उसके साथ एक वायर लगा रहता है ब्लैक वाला, राइट? कभी आपने चेक किया कि वो पॉस मशीन के साथ वायर कहाँ लगा है? इट मे बी कनेक्टेड विथ स्कीमर, मे बी। आप दिल्ली एक मार्केट है आईएनए मार्केट, आप शायद सर, अगर आप आईएनए मार्केट में कुछ भी परचेज करते हैं, इसके बाद आप वहां से होटल जाते हैं, जाने का टाइम में ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आई कैन एश्योर यू। और हमारे रेस्पेक्टेड एक जज हैं सर, मैं नाम मेंशन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो सर वहां पर स्वाइप किया, घर में जाने से पहले ही गाड़ी में ही पैसा गायब, 1 लाख। ठीक है, क्योंकि उसका एक दिन का लिमिट 1 लाख था।
उसमें क्या हुआ, एक स्कीमर लगा है, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए आपको स्कीमर में स्वाइप करने के लिए। मान लीजिए वो डिस्क है, आप काट दिया उसको, वो स्वाइप किया, बस हो गया। इसके बाद वो वॉश मशीन लगा के आपको ऐसे देगा, सर पिन ऐसे दे देना। तो आप लोग क्या करते हैं, हाँ दिल खोल के पिन डालते हैं। और ऊपर आप कभी देखा या नहीं पता नहीं, हर शॉपिंग मॉल कहीं पर सीसीटीवी कैमरा हो या नहीं हो, कैश काउंटर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा रहता ही रहता है। ठीक है, तो पहले आपका कार्ड स्वाइप हो गया, मीन्स आपका कार्ड क्रेडेंशियल चला गया, उनके पास ऑलरेडी है। इसके बाद आपका पिन कोड, ओटीपी नहीं सॉरी, पिन कोड एम पिन आपने डायल कर दिया ओपनली विदाउट कवरिंग योर हैंड, आपने दे दिया। सीसीटीवी कैमरा वहां रूम से मॉनिटर कर रहा है पूरा चीज, वहां पर भी कोई ऑपरेटर चल रहा है, ठीक है, ऑपरेट कर रहा है इसको, उसको जूम करेगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा, हो गया। अभी क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, आपका मोबाइल नंबर है, कार्ड का डिटेल्स है, आपका पिन नंबर है, हाँ चाहिए। आप अमेजोन में जाइए, सर्च कीजिए एटीएम कार्ड प्रिंटिंग मशीन 9700, आप एटीएम कार्ड फ्री में प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट कीजिए, इसके बाद आपके पास सब क्रेडेंशियल है, स्कीमर लगाइए, कंप्यूटर में लगाने से आपको नंबर दिख जाएगा, कार्ड का नंबर सीवी सब दिख जाएगा। इसके बाद आप कार्ड आराम से प्रिंट कीजिए और कहीं से विड्रॉ कीजिए, कोई मैटर नहीं, ठीक है। तो इट इज वेरी डेंजरस टू गिव योर क्रेडेंशियल्स। मोबाइल नंबर मत दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, आप कभी पूछा है कि मैं मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, मैं भी रख सकता हूं? वो कभी पूछा है? कितने बंदे ने पूछा है? नहीं कर सकता वो, ठीक है। कुछ कुछ मॉल्स में है देना ही है मैंडेटरी, तो दे दीजिए, क्या है, 10 डिजिट में जैसे मैं देता हूं 2 डिजिट गलत दे देता हूं, वो रिवॉर्ड 1 रुपए का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, रिवॉर्ड नहीं चाहिए। 1 रुपए का रिवॉर्ड के लिए आपका लाखों रुपए चला जाएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड ना, आपको लाखों रुपए प्यारी है या 1 रुपए का रिवॉर्ड प्यारी है। ओके, तो समझ में आया हमें? और कुछ, आर यू क्लियर? इसको अवॉइड करने के लिए जो नया एटीएम्स है, न्यू एटीएम्स में आप देख सकते हैं कि उसमें जो ग्रीन कलर पार्ट जिसमें हम कार्ड्स इंसर्ट करते हैं, एट फर्स्ट आपको अगर डाउट हुआ तो उसको थोड़ा हिला के देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हिला के देखने से वो अगर नॉर्मल पेस्टिंग है तो वो आ जाएगा आपका हाथ में, दिस इज द वन वे, ठीक है। और कीबोर्ड जो है, अगर उसके ऊपर इंपोज किया हुआ दूसरा कीबोर्ड है तो आपको अच्छी तरह से देखने से पता चल जाएगा। और ओरिजिनल कीबोर्ड जो होगा वो गंदा होगा, वो साइड में डस्ट वगैरह गिरा होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे आप चेक कर सकते हैं। और नया जो एटीएम मशीन्स आए हैं उसमें एक यूनिक फीचर्स है, आप देखे होंगे ऐसा एक कवर रहता है, नेट जैसे कवर रहता है, उसका एक यूनिक पॉइंट है, आप लोगों को पता है? आप उसमें जो कार्ड इंसर्ट वाला पार्ट है उसके सामने आप मोबाइल रख के रखिए, वो स्लॉट बंद हो जाएगा। और मिनिमम 20 मिनट पहले था, 20 मिनट तक वो स्लॉट नहीं खुलेगा। उसमें एंटी एटीएम स्कीमिंग अलार्म लगा हुआ है अंदर। अगर कोई भी डिजिटल डिवाइस विदाउट मींस एक्सेप्ट कार्ड, अगर आप कुछ भी डिजिटल डिवाइस के कार्ड स्लॉट के सामने रखते हैं तो बंद हो जाएगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा उसका, ठीक है। वो नया वाला एटीएम में ही है ये सिर्फ, जो कवरिंग होता है ऊपर में, जो नंबर देने के लिए हमें झुकना पड़ता है, ठीक है। और बांग्लादेश एटीएम तो इससे भी अच्छा है। त्रिपुरा में आपने सुना है एटीएम स्कीमिंग हुआ था? आपको पता है त्रिपुरा में एटीएम स्कीमिंग हुआ था? तुर्किश नेशनल आके त्रिपुरा में 7 एटीएम से पैसा लेके गया, 63 लाख रुपीस, और उसके इन्वेस्टिगेशन में मैं था और 3 स्टेट का पुलिस उसके पीछे घूमे। अल्टीमेटली कोलकाता से हमने उनको अरेस्ट किया, ठीक है। और उनके पास से 63 लाख रुपीस रिकवरी हुआ और वो बंदा त्रिपुरा का जेल से भाग गया, ठीक है, भाग गया। अभी वो जाके बांग्लादेश में अटेम्प्ट किया और बांग्लादेश एटीएम में
क्या हो गया, एंटी अलार्म सिस्टम उसमें है, वो पूरा एंटी अलार्म दे दिया और वो एक्यूज को वहां पुलिस ग्रैब कर लिया, अभी वो बांग्लादेश जेल में है। ठीक है, ओके क्लियर, किसी का डाउट प्लीज। ओके, मैटर ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट है, आप रिमूव तो कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग फॉरेंसिक एनालिसिस विल गेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आपने डिलीट किया ये भी आ जाएगा आपका, डिलीट तो आपको पता ही होगा, डिलीट एंड वाइप आउट, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो डिलीट किया तो आप नहीं देख रहे, लेकिन ड्यूरिंग फॉरेंसिक एनालिसिस विल गेट ऑल ऑफ दिस, all of these logs. In certain extent it is possible, but in all cases it is not possible. और मेरा सजेशन ये है, कभी आप फ्री वाईफाई मत यूज कीजिए, नथिंग इज फ्री, उसमें भी आपका क्रेडेंशियल जाने का चांसेस है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं, कहाँ रखा, okay, these are few tools that is very much helpful for you and for also for investigation also, right? Okay, सबसे पहले अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास कोई फोटो आया, राइट, आपके पास कोई फोटो आया एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट फोटो कि ये इसका मेटा डाटा कहाँ है। भाई ऐसा भी कभी कभी व्हाट्सएप में फोटो आता है कि भाई इस भगवान को भगवान का फोटो को 20 आदमी को शेयर करो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। या कभी कभी ऐसा भी आता है कि भाई ये इंसिडेंट हो गया अगरतला में नियर अस्तबल मैदान, ठीक है, ये रायट चल रहा है, कम्युनल क्लैश चल रहा है, दिस इज द इंसिडेंट, ओके, बट इन फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन एनालाइज दिस बाय फ्री टूल्स, ठीक है, और उस टूल्स का बहुत बहुत हेल्प लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कोई भी इमेज, उसका मेटाडाटा आपको चेक करना है, यू नो ना, मेटाडाटा मींस कौन सा कैमरा से उठाया गया, कौन सा वर्जन है कैमरा का, कौन सा मोबाइल से उठाया गया, कब उठाया गया, डिटेल्स। या कोई अक्षय कुमार का फोटो ही भेज दिया, यू हैव टू चेक वेदर दिस इज द जेन्युइन इमेज और नॉट, ओके। तो यहाँ पर जो टूल्स मैं दिखा रहा हूँ, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टूल दैट इज कॉल्ड, नहीं होगा, दिस कॉल्ड फोटो फॉरेंसिक, ठीक है। इसमें फोटो फॉरेंसिक का ये है वेबसाइट, दिस टोटली फ्री, आप ये यूज कर सकते हैं। मान लीजिए देखता हूं मेरे पास कोई इमेज है या नहीं, ओके है, इसमें अगर आपके पास कोई लिंक है उसका भी जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं, या फोटो फोरेंसिक में मेरे पास शायद मेरा ही कोई पुराना फोटो वगैरह होगा, देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये मेरा
MHA का एक फोटो है, मैंने MHA में उठाया था इसको। अपलोड हो रहा है, इसमें आपको पूरा कंटेंट दिखाएगा कि इसके मेटा डाटा में क्या क्या चीज था। ठीक है, ये देखिए मेरा ही फोटो है, ये MHA के सामने है। ये मेटा डाटा में क्लिक करने से इसका मेटा डाटा आपको पूरा दिखाई देगा। देखिए ठीक है, दिस इज द ऐप। ये मेरा एप्पल फोन से उठाया गया है। ठीक है, और एप्पल कंप्यूटर में ही मेरा ये पूरा डिटेल्स आपको दिखा रहा है। यहाँ पर कब उठाया गया, क्या डिटेल्स वगैरह भी है, फॉर्मेट वगैरह भी सब है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आराम से उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वन प्लेटफॉर्म। ये एक मान लीजिए आज के डेट में ट्विटर में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप लाइव देखना चाहते हैं, लाइव। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में किसी बैठ के कोई बंदा, यहाँ पर इस रूम में बैठ के कोई बंदा ट्वीट किया, कुछ भी ट्वीट। ठीक है, ये देखिए ये एक साइट है, ये लाइव दिखाता है कहाँ क्या ट्वीट हुआ। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया में हमें जाना है कहाँ, त्रिपुरा में। ये है त्रिपुरा। माउस होने से थोड़ा ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए, ये काम नहीं कर रहा। एक थोड़ा माउस होने से। ये बांग्लादेश के पास में ही है, आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली। ये त्रिपुरा आ गया। ठीक है, ये अगरतला है, आप देख सकते हैं, विशालगढ़। ठीक है, इसमें जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, दैट इज द ट्वीट्स। मान लीजिए ये ट्वीट्स देखिए किसने किया। ठीक है, नाम यहां पर है, आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, वो ट्वीट में क्या डाला ये भी लिखा है, कंटेंट लिंक वगैरह सब भी दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट सर्च इट आउट। ये इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का पूरा ट्विटर का पूरा मैप दिखा देता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड साइट। इसका अपडेट भी मिलता है क्या टाइम स्टैम्प के साथ? हाँ सर, मिल जाता है, एग्जैक्टली। But after change from Twitter to X, they Sir. are not showing. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. India, they are showing as Bangladesh. Yeah, exactly, sir. Exactly, sir. Exactly. Okay. और दूसरा एक साइड है, आप देख सकते हैं, ओशियन फ्रेमवर्क। इट इज वेरी 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 गुड साइट, और मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। ये आप लोगों को भी बहुत काम में आएगा। आप लोग यूज किया है या नहीं मुझे पता नहीं है। आप लोगों को किसी ईमेल आईडी का कुछ डिटेल्स निकालना है तो दीज आर द साइट्स। आप इसमें जाइए, ईमेल एड्रेस दीजिए, वो आराम से खुल जाएगा। ठीक है, आराम से उस ईमेल का हेडर वगैरह सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, कुछ भी जाइए सोशल नेटवर्क्स में, आपका सोशल फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, कुछ भी सोशल मीडिया रिलेटेड कोई भी कुछ निकालना है तो यू कैन सर्च इट आउट फ्रॉम हियर। और एनालिटिक्स में कुछ निकालना है, ये दो साइट्स हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको आईपी एड्रेस के बारे में कुछ निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। IPv4 एड्रेस के लिए अलग से निकाल सकते हैं, IPv6 के लिए अलग से निकाल सकते हैं, जियो लोकेशन निकाल सकते हैं। जियो लोकेशन निकालने के लिए ये साइट्स हैं, इसमें से आप फ्री में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव फ्यू मोर साइट्स, that is MX Toolbox. It is also very important site. इसमें आप ईमेल हेडर डाल दीजिए, इसमें ईमेल हेडर डालने से आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमें ईमेल हेडर का एनालिसिस करना पड़ता है, वेदर द ईमेल इज जेन्युइन और फेक, राइट सर?
in that case it is very useful tool. Okay. इसके अलावा ये टूल्स ये who.is domain tools, this is another website. इसमें आपको स्पेसिफिकली आईपी किसको दिया गया है वो मेंशन हो जाता है. ठीक है, अब सिर्फ आईपी डालना है. आईपी डाल के मीन्स वो आईपी किस बंदे को अलॉट हुआ. ठीक है, अगर वो आईपी स्टैटिक है या डायनामिक है इट्स डिपेंड अपॉन, बट वो आईपी का सर्कल क्या है मीन्स कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का है पूरा डिटेल्स इसमें दे देता है. ठीक है, और अगर ये आपका स्टैटिक आईपी है, मान लीजिए बीएसएनएल का है या एनकेएन का है या मान लीजिए ब्रॉडबैंड का है, तो स्टैटिक है तो पूरा डिटेल्स दिखा देगा कि ये आईपी पर्टिकुलरली किस जगह पे अलॉट हुआ, ये भी डिटेल्स दे देता है. ओके, दिस इज वन साइट, दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल. कभी कभी आपके पास ऐसा भी कुछ साइट्स आएंगे जहां से आपको बोलेगा कि आपको जॉब ऑफर कर रहा है, बहुत अच्छा डील है ये वो, बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है. आप यहाँ पर सिर्फ नाम टाइप कीजिए. मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ रोज वैली. रोज वैली तो आपको पता है ना, चिट फंड है, अभी तो गायब है ना. तो रोज वैली के बारे में अगर अभी भी है, ये किसके नाम पे चल रहा है कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, डायरेक्टर कौन है, आरओसी कहाँ का है, या फिर आरओसी कहाँ लिखा है, कोलकाता. ठीक है, और कौन बंदे चला रहे हैं, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पूरा नंबर वगैरह सब है. एंड दैट इज जेन्युइन वन. हमने बहुत सारे एक्यूज को इसके द्वारा ट्रैक भी किया है और अरेस्ट भी किया है. ठीक है, तो कभी भी कोई भी साइट या कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप उसको यहाँ पर कंपनी का नाम देके आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर डायरेक्टर का नाम भी लिखा है 2014. ठीक है, एंड वी कैन गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम दिस साइट्स. ओके, नेक्स्ट it is also very important site, threatintelligence.com. इसमें जाके आप मान लीजिए आपके पास कोई डोमेन नेम है या अभी वो बिफोर एड्रेस है और उसका वल्नरेबिलिटी चेक करना चाहते हैं. ठीक है, मान लीजिए वो कभी कभी वो फ्रॉड एक्टिविटी में ज्यादा होने से, जैसे ट्रू कलर में आता है ना रेड कलर करके स्पैम बोल के आता है ना, तो इसमें भी ये ट्रैक करके दे देगा कि वो आईपी कितना वल्नरेबल है और डोमेन नेम कितना वल्नरेबल है, पूरा दे देता है. ओके, URL scan.io, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी URL, जैसे बिटली देके कोई भी URL आपको आया, बिटली आता है ना मोबाइल में, जैसे मैंने देखा मोबाइल में मैसेज में एक URL आया bitly.so, उस URL को आप यहाँ डाल दीजिए और पब्लिश स्कैन कर दीजिए, यहाँ पर इसका वल्नरेबिलिटी रेशियो दिखा देगा. ठीक है, ये साइट एक बार देख लीजिए आप लोग, शायद आपका कोई काम में आ जाए. ये तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ये नहीं, सॉरी. अच्छा, आपको मोबाइल का IMEI नंबर पता है, एक IMEI नंबर पता है, दूसरा IMEI नंबर कैसे आप निकालेंगे, या आपका IMEI नंबर सर्च करके किसी का भी IMEI नंबर है आपको उस मोबाइल के डिवाइस को देखना है, आप लोग कर सकते हैं. पता है आपको, पता है, किसी को नहीं पता, पता है. ओके, which side, which side, ओके. ट्रेंड्स 24 बोल के एक है जिसमें आप आज का दिन का फेसबुक ट्विटर का ट्रेंड्स देख सकते हैं पूरा लाइव, और आप सर्च भी कर सकते हैं कोई ट्रेंड आपको चाहिए तो. ठीक है, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग सोशल इंजीनियरिंग में एक साइट बहुत यूज करते हैं, ये बहुत 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 काम का चीज है, दैट इज कॉल्ड वेबमी. ठीक है, इस साइट में आप जाइए,
कुछ भी, किसी का भी नाम डाल दीजिए, ठीक है। मैंने अलग राय सर का नाम डाला, प्लीज कोई आपका अपना नाम बोले प्लीज, अपने नाम का एक बार स्पेलिंग का सर। SHI BE NDU সামনে কি দেখবো মানা স্যার? ওকে, ডক্টর তো লেখেন মনে স্যার না? ডক্টর, ওকে, জাস্ট গো টু সার্চ, ইট উইল সার্চ ফর মি। Sir, am I right? Okay. Information may be less. No, sir. Okay. Those tools to say. Yes, sir. Okay. Whatever it may be, सर का इमेज और बाकी बहुत सारे डिटेल्स मुझे मिल जाएंगे, बट इट इज वेरी सीक्रेट, तो मैं सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग ये साइट ये भी यूज करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग करके एक डाटा बनाते हैं, जैसे फ्रॉडस्टर लोग करते हैं सेम वे हम भी करते हैं। तो उनको compete करने के लिए हमें भी चाहिए ये सब सीखना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लिंक्स, और मेरा सजेशन ये है कि जो लोग इस फील्ड में
So please unmute the mic. ये सबको आप लोगों को पता होना है। जो एटीएम फ्रॉड केस में त्रिपुरा में हुआ था, बैंक इज ऑलवेज ट्राई टू स्किप, ठीक है। अगर आपको रूल्स पता नहीं है तो रूल क्या है, देयर इज ए वन रूल, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉडुलेंटली तो इसमें दो ही कारण हो सकता है, एक है विदाउट माय कंसेंट और दूसरा है विद माय कंसेंट। फ्रॉडुलेंट मींस मिस्टेकनली, राइट। तो विद माय कंसेंट है तो बैंक इज नॉट लायबल टू रिफंड द इफेक्ट, बट विदाउट माय कंसेंट जैसे त्रिपुरा में हुआ 63 लाख रुपीस, ठीक। उसमें बैंक वालों को हमने बुलाया और उनको बोला कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन 2017 9 जुलाई 2017 उसमें 9 नंबर पॉइंट में क्लियरली मेंशन है, if the money has been transferred fraudulently without the consent of the customer, then bank has to refund that particular amount within 10 working days. Clear? लेकिन बैंक उस टाइम पैसा नहीं दिया, बैंक उस टाइम पैसा नहीं दिया। तब हमने उनको बुलाया हमारे पुलिस ऑफिस में, उनका रीजनल ऑफिसर को, दो रीजनल ऑफिस है, साउदर्न जोन और नॉर्थर्न जोन, बुला के बोला दिस इज द आरबीआई गाइडलाइन एंड यू हैव टू रिटर्न। इसके बाद वो लोग बुला रहे हैं, हमें तो याद नहीं था ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। हम लोग देख गए और इसके बाद 10 डेज में नहीं हुआ, आफ्टर 1 मंथ जो विक्टिम का पैसा गया सब पैसा उनके अकाउंट में आ गया। लेकिन 10 दिन बाद होने से बैंक विल प्रोवाइड यू इंटरेस्ट, तो ये आप लोगों को जानना है, ठीक है। अगर गाइडलाइन चाहिए मैं गाइडलाइन भी शेयर करूंगा, नो इशू। एनी डाउट? My session is almost over. Thank you so much. और कोई भी डाउट है कोई भी तो आप लोग मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। एनी इश्यूज रिलेटेड टू साइबर पुलिस मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन माय नंबर 94361 38097 94361 38097। Clear? Thank you so much. Thank you once again. This is not the first time you have responded to our call. And in future also, this will be with us. So thank you for this session. I hope all the participants have at least learned what they did earlier. So now, as a token of respect, I would like to request our HOD sir to present the memento from our department. Ashwar sir, please come forward. Okay, by the time Pranav is setting the next laptop for the next speaker. Thank you, sir. So, without any further delay, as we are already going late, without any further delay or break or anything, we'll be continuing to the next. I don't know how far I can entertain you, like Bhaskar, because it's already end of the day, so you'll be tired also. But I will try go some training jobs also if we will manage. So nice presentation by Bhaskar. So it was a nice presentation on because we should get difficult header. Okay, so the white cap and the gray or the black. Okay, so what they are doing is the white one. So to know the thief intentions, you have to go to their intention. You have to know. This is a trade because चोर कभी आएगा जाएगा, पुलिस कभी आएगा जाएगा, because they will start doing that and then all the things goes after that. We have to know their intention. We call it a typical factor. So there are several cases happening. Even nowadays,
nations also involved. I will not be going to this topic because in between the pastor will be a permission. I will Sir, share please. some of my experience. There are so many cyber crimes, cyber fraud is in country. Okay, there are now nations are involved. Like in a war, if you see the trend, like we have started, like भगवान के जमाने में भी युद्ध होता था, महाभारत, okay, but started fighting, okay, देखो fighting का ट्रेंड कैसे चेंज होता है ना, धार्मिक युद्ध था, विश्व से धार्मिक युद्ध, उसके बाद क्या आया, मनुष्य आया, बोले थे चलते लड़ाई शुरू हुआ, on the riding horse, then what? In between cold war start हुआ, post war में ठंडे दिमाग से युद्ध करना, पहले पानी का टैंकी हुआ, लाइट हुआ, एक तो किसी को डिवीजन जैसा भेज दो, so that started cold war. Then the war structure started what? The war से एक गन आ गया, 303, उस पे आ गया, उससे एक ही गन जाएगा.